امن اچھا اچھا ٹھیک گیا ساؤنڈ کے دوبارہ کون دیجیے بھائی کہاں گئے آپریٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب نہیں چل رہا ہے کیا سب؟ ہلو ہلو تمہارا تو اس ہے چلو ہلو دعا فرما لیں یا رسول اللہ علیہ مشکل کشا کے واسطے حضرت مولا حسن مصطفیٰ کے واسطے خاتون کے یا مصطفیٰ واسطے حضرت حسین کربلا جہازہ معصوم کا سبحان رسول میری دعوت کیجیے حضرت قبول روبرو دیدار اپنا کیجیے دن قیامت کے شفاعت کیجیے در پڑے کی دستگیری کیجیے جو جہاں میں آبرو رکھ لیجیے گرچہ میں عاصی بہت ہوں روسیا آخر ہمت میں ہوں اے پیشوا پیروی مرشد کی کر مجھ کو نصیب مت تو آئے دل بھرائے یا مجید میرے رہبر میرے ہادی میرے پیر شاہ درعارف رب خبیر نگاہ کرم ہو یا مصطفیٰ نگاہ کرم ہو یا مصطفیٰ نگاہ کرم ہو یا مصطفیٰ بصدقہ شہدائے کربلا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی تک آپ یکے بعد دیگرے جتنے بھی شعرا نعت خوانے رسول نعت خانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے رہے، آپ ان سے کلام سماعت فرماتے رہے، محظوظ ہوتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ گرمی ہے، پریشانی کا عالم ہے اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، تو جتنا جلد ہو سکے پروگرام ختم ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو لنگر بھی کھانا ہے، تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر آپ مجھ کو برداشت کر لیں. اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا اور آپ حضرات لنگر بٹے گا، آپ لنگر کھانا کھائیں گے. اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے، شیرنی لے کر کے جائیں گے. آئیے میں تقریری پروگرام شروع کرنے سے پہلے بغیر خطبہ کے چاہتا ہوں کہ چند شعر آج کی مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچاؤں. ویسے میرا مزاج تو یہ نہیں تھا کہ میں کلام پڑھوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات تقریری گفتگو جو ہماری سنیں گے، بارہا آپ سنتے بھی چلے آ رہے ہیں. آج کوئی نئی گفتگو تو میں کروں گا نہیں، ساری گفتگو پرانی کروں گا، اس لیے کہ جب پرانا سبق یاد نہ ہو تو نیا سبق دے کر ہی کیا ہوگا. تو پھر اسی سبق کو دہراؤں گا تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، تو پھر اگلا سبق دیا جائے.
آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا مولا تاجدار حرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آواز بلند جھوم جھوم کر کے درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ بآواز بلند سارے لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی مجلس سرکار عالم پناہ وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اس مہینے کی نسبت سے محفل ہے جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے بزرگوں کا سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر دنیاوی سفر نہیں بلکہ دنیا سے آخرت کی سفر۔ اس میں سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پہلی سفر تھے۔ اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں پہلی تاریخ کو اول تاریخ کو آپ بھی 4:13 بالکل صبح صادق کے وقت دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا پہنچ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے وارث پاک کے پردہ حسن میں جانے کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی۔ اس میں ایک سفر سے 11 سفر تک دیوا شریف میں بھی محفلیں اور خصوصی طور پر نیاز نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جو عاشقان وارث پاک ہیں، عاشقان حسین ہیں، عاشقان مولا علی ہیں، وہ بھی اس مہینے میں اپنے نبی کی مجلس سجا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم آل نبی اولاد علی کے غلام ہیں۔ اسی نسبت سے آج کی محفل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ رنگ معرفت کا ہو، کلام تاجدار کائنات کی شان میں ہو، کیونکہ مجلس میلاد ہے، ذکر عید میلاد النبی ہے، تو معرفت کا رنگ ہو اور ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو آئیے پھر اپنے آقا مولا مدینے کے تاجدار، مدنی تاجدار، مالک و مختار سید ابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر ایک بار بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیتے ہیں لوگ، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر جب اسے درست پڑھا جائے تو درست ہی ہوتا ہے۔ لہذا آئیے شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرکار محبت کا اتنا تو سلا دینا، سرکار، یہ جو محبت میں مجلس ہم سجائے ہیں،
سرکار کچھ نہیں چاہیے لیکن اتنا ضرور عطا کر دیجیے گا کہ سرکار محبت کا اتنا تو سلا دینا، سرکار محبت کا اتنا تو سلا دینا، اب تک تو نبھایا ہے آگے بھی نبھا دینا، اب تک تو نبھایا ہے آگے بھی نبھا دینا، سرکار محبت کا اتنا تو سلا دینا، قدموں سے میرے سر کو اپنے نہ جدا کرنا، ایک دعا ہے ہر مومن کی یہی تمنا ہوتی ہے، یا رسول اللہ قدموں سے میرے سر کو اپنے نہ جدا کرنا، قدموں سے میرے سر کو اپنے نہ جدا کرنا، ارے تیری راہ کا پتھر ہوں ٹھوکر ہی لگا دینا، تیری راہ کا پتھر ہوں ٹھوکر ہی لگا دینا، سرکار محبت کا اتنا تو سلا دینا، اب تک تو نبھایا ہے آگے بھی نبھا دینا، درود پاک ایک بار پھر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلاۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں آپ تک سے پہنچا رہا ہوں اپنی اپنی تصور اور اپنا اپنا خیال، اپنی تصورات کی منزلوں میں جس کی رسائی جہاں تک ہو، بلندی ان کی اے عارف نہ پوچھو کہ کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کی مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مکی سے لامکان تک ہے۔ تو اپنی اپنی اڑان ہے، اپنا اپنا خیال ہے، اپنی اپنی تصور ہے، شیر حاضر ہے۔ اب گھما دو میرے محبوب تیری
वो सूरत हसी मेरे महबूब बड़ी धुंधला है। तेरी। अब गिराने पड़ रहे थे कि मैं गधे का तो मालिक तो मुख्तार है, तो मुझे तरन्नुम याद आ गया कि इनकी तरन्नुम में मैं भी पढ़ दूँ। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी रह गई मेरे वारिस पिया। अब क्योंकि मैं ये लफ्ज नहीं कहना चाह रहा था, मैं सोचता था कि आप महबूब पर ही समझ जाएंगे। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी रह गई मेरे महबूब तेरी। ये मतलब मैंने क्यों पढ़ा है? इसलिए कि कुछ लोग फिसल जाते हैं। आज जिसके दिल में महबूब की सूरत सजी रह गई तो कामयाब हो जाता है। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी रह गई तो नाज क्यों ना करूं अपनी तकदीर पर, नाज क्यों ना करें नाज क्यों ना करें अपनी तकदीर पर। अरे मुस्कुराती मेरी जिंदगी रह गई नाज क्यों ना करें अपनी तकदीर पर, नाज क्यों ना करें अपनी तकदीर पर। मुस्कुराती मेरी जिंदगी रह गई मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी रह गई। और जो अपने मुर्शिद का दीवाना होता है, समाज फरमाए शेर दे रहा हूँ। जोर बातिल की फूंकों से बुझ न सकी, यासीन शेर देखो। जोर बातिल की फूंकों से बुझ न सकी, तूने बख्शी जो है नूर की रोशनी। जोर बातिल की फूंकों से बुझ न सकी, तूने बख्शी जो है नूर की रोशनी। है मुनव्वर ये सीना अरे उसी नूर से, है मुनव्वर ये सीना उसी नूर से। शम्अ-ए माँ चली तो चली रह गई। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी रह गई। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी की सजी
रह गई, नाज क्यों ना करे अपनी तकदीर पर, मुस्कुराती मेरी जिंदगी रह गई, नाज क्यों ना करे अपनी तकदीर पर, मुस्कुराती मेरी जिंदगी रह गई। जोर बातिल की फूंकों से बुझ न सकी, तूने बख्शी जो है नूर की रोशनी, तूने बख्शी जो है नूर की रोशनी, है मनव्वर ये सीना, अरे उसी नूर से है मनव्वर ये सीना, उसी नूर से। बोल के कहूँ क्या है मुनव्वर ये सीना, वारसी नूर से है मुनव्वर ये सीना, वारसी नूर से। शमई माँ जली की जली रह गई, मेरे महबूब। शेर बतौर खास अहले इल्म और अहले ईमान और बेहोश हजरात के हवाले से रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे। तेरे जैसा न देखा हंसी मैं कहीं, तेरे जैसा न देखा हंसी मैं कहीं, तेरी हर एक अदा बन गई बंदगी, तेरे जैसा न देखा हंसी में कहीं, तेरी हर एक अदा बन गई बंदगी। और तेरे सर पे खुदा की कसम ये जबी, तेरे सर पे खुदा की कसम ये जबी, जब झुकी तो झुकी की झुकी रह गई। हजरत वारिस पाक जिंदाबाद, रहबरे मिल्लत सरकार ख्वाजा जुगनू हसन शाह जिंदाबाद, रहबरे मिल्लत सरकार बाबा हैरत शाह जिंदाबाद, आस्ताना वारसिया जिंदाबाद। तेरे सर पे खुदा की कसम ये जबी, जब झुकी तो झुकी की झुकी रह गई, मेरे महबूब तेरी वो सूरत हंसी, मेरे दिल में सजी की सजी रह गई, मेरे महबूब तेरी वो सूरत हंसी। और अपने अपने पीर को मद्देनजर रखते हुए शेर समाप्त फरमाए और देखें। शेर दे रहा हूँ। देने वाला तो देने को है मुंतज़िर, देने वाला तो देने को है मुंतज़िर, लेने वाले को लेने का ढंग ही नहीं, देने वाला तो देने को है मुंतज़िर। मेरे सरकार खड़े थे, अबू जहल न ले सका और मौला अली भर भर के दामन ले लिए और सरकार ने कहा कि मैं जिस इल्म का दरवाज़ा हूँ, मैं जिस इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाज़ा अली है। तो लेने वाला तो ढंग हो तो लेने वाला तो ले लेता है, देने वाला तो देने
को है मुंतजिर। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ जगह है, आइए। देने वाला तो देने को है मुंतजिर, लेने वाले को लेने का ढंग ही नहीं, लेने वाले को लेने का ढंग ही नहीं। दीन की दौलत लुटाने की खातिर यहाँ, दीन की दौलत लुटाने की खातिर यहाँ, देखो रहमत खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी सजी रह गई। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी। और फिर आशिक माशूक का एक आशिक व माशूक की जो मंजिल है वो ये होनी चाहिए जो मैं इस शेर के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। तकरीर तो मैं मुकम्मल कर दिया इसी शेर में, लेकिन ये बात ये है कि कुछ नजरों में ही बात को शेर देखे बतौर खास समाज फरमाए। उनकी नजरों से जब ये नजर मिल गई, उनकी नजरों से जब ये नजर मिल गई, मुझसे पूछो न कैसी वो बिजली गिरी, मुझसे पूछो न कैसी वो बिजली गिरी। आतिशे इश्क दिल में लगी इस तरह, आतिशे इश्क दिल में लगी इस तरह, आखिरी सांस तक बस लगी रह गई, आखिरी सांस तक बस लगी रह गई। मेरे महबूब तेरी वो सूरत हसी मेरे दिल में सजी सजी रह गई। और मेरे दोस्तों आइए बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि या मुहम्मद। हज़रात, मैं कलाम के हवाले से तो नहीं, कलाम तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये एक नया कलाम आप तक पहुँचाऊँ ताकि पता ये चले आपको कि मुर्शिद की कमी क्या होती है। और जो लोग नफ्स अम्मारा के पुजारी होते हैं उनके लिए एक पैगाम मैं दे रहा हूँ। मेरा काम कलाम सुनाना, तसव्वुफ़ सुनाना ये तो मैं कर दूँगा, लेकिन पैगाम पहुँचाता हूँ मैं, इसलिए ये पैगाम आप तक पहुँचे और आप इस बात को समझें। मैं अपने हवाले से सब तक पहुँचा रहा हूँ। अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग अय्यारी, मक्कारी, रियाकारी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बुराइयों में मुलव्विस रहते हैं, मसला समाप्त फरमाएं। आज बहुत ज़्यादा चुगलखोर और अय्यारी, मक्कारी लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मसला हाजिर करता हूँ खास तौर से ऐसे लोगों के लिए। न दोस्तों के करम, अंदाज गजल का है, फरमाए। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम
ستم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، فنا کے آگے نہ تم رہو گے، فنا کے آگے نہ تم رہو گے، نہ ہم رہے گا نہ ہم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے۔ شاید میرے دوستو شعر آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے، سماعت فرمائیں، مطلب پھر پڑھتا ہوں۔ نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، فنا کے آگے نہ تم رہو گے، نہ ہم رہے گا نہ ہم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں۔ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، مجھے یقین ہے، اگر تم غلط کرو تو میں کیا کروں، مجھے یقین ہے، یا تم مجھے نہ چاہو تو میں کیا کروں، مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، سکون سے تم بھی نہ جی سکو گے اگر میرے دل میں غم رہیں گے، نہ دوستوں کے۔ اس لیے جگنو شاہ پہ طنز کرنے والوں سنو، تو بھی سکون سے تم بھی نہ جی سکو گے اگر میرے دل میں غم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ اب مرشد ناراض ہو جائے، اب مرشد چاہے کہ چین سے جی جائیں تو مشکل ہے میرے لیے، میں ناراض کر کے اگر جی لوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، پھر ناراض ہو۔ قرآن نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تب آگے ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ شعر بطور خاص دے رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فنا کے آگے نہ تم ہو، فنا کے آگے نہ تم ہو، نہ ہم رہا ہے نہ ہم رہیں گے، ابھی تمہارا ہے بول بالا تو سب، ابھی تمہارا ہے بول بالا، ابھی تو سب جان دیں گے تجھ پر، ابھی تمہارا ہے بول بالا، ابھی تو سب جان دیں گے تم پر، مصیبتوں میں پکار لینا، تمہارے نزدیک ہم رہیں گے،
रहेंगे। फना के आगे न तुम हो न हम रहा है न हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे न दुश्मनों के सितम रहेंगे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास माथवान मक्का पेश करता हूँ। है सीरत फातिमा नजर में सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। है सीरत फातिमा नजर में। मैं तो अलल ऐलान इस बात को बोलता हूँ मेरी मुखालिफत न करो, इसलिए कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है और मौला अली के इल्म से वो इल्म मुझे अता है कि जिस जगह जुगनू पहुँच जाएगा चाँद भी उतरेगा सूरज भी उतरेगा। हज़रात गिरामी, मैं मक्ता पेश कर रहा था, मक्ता ही पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाएं। न दोस्तों के करम रहेंगे न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के आगे न तुम हो न हम रहा है न हम रहेंगे। है सीरत फातिमा, बहुत जबरदस्त पैगाम है, सुनो। है सीरत फातिमा नजर में सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। है सीरत फातिमा नजर में। शायद मेरे दोस्तों अगर ये जुमला मैं शियों के महफिल में कह दिया होता तो अब तो उछल गए होते। फातिमा ज़हरा दरबार में खड़ी की खड़ी रह गई, सुना नहीं गया, दस्तावेज फाड़ दिया गया, गवाहों को फेल कर दिया गया और बागे फेदक नहीं दिया गया, बागे फेदक नहीं दिया गया। है सीरत फातिमा नजर में सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। है सीरत फातिमा नजर में सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। वफा की राहों में हम जुगनू हमेशा साबित कदम रहेंगे। वफा की राहों में हम जुगनू हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के आगे न तुम हो न हम रहा है न हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे
फातिमा ज़हरा के दस्तावेज दरबार में फाड़ दिया गया, मगर वफा की राहों में समय जुगनू हमेशा साबित कदम रहेंगे। ये हैरत शाह की ज़बान है, उसकी वफादारी जुगनू शाह के पास है। मेरे दोस्तों, पैगाम तो दे दिया, जो समझा वो समझ गया, जो नहीं समझा कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फ़मन तवल्ला व बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वह। लाइट हवा मारे देखा तो वहाँ आवाज़ें कर दिया आप ये चलो ना हो तो हज़रात गिरामी, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर और खिताबत के लिए नहीं बैठा हूँ। बस चंद मिनट, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, तो चंद मिनट के लिए मैं आया हूँ ताकि महफ़िल का हक़ अदा हो जाए और तकरीरी प्रोग्राम देर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इसलिए इस मौके पर, नौ सफ़र के मौके पर ये मजलिसें हम हमेशा नहीं करते, कभी कभी मिलाद शरीफ में महफिल कर लेते हैं। इसलिए दूर दराज खबरें भी नहीं पहुंचाते, लोग अपने ही भाई बहन मिल करके हम कर लेते हैं। ये आज की जो मजलिस है, मैं बताया आपको कि सरकार आलम फना वारिस पाक आलम नवाज के पर्दे हुस्न में जाने के सिलसिले से महफिल सजाई, क्योंकि सरकार आलम फना वारिस पाक एक सफ़र को इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारे बक़ा की तरफ कूच किए सुबह सादिक के वक्त 4:13 पर, और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। सरकार आलम फना वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती को कौन नहीं जानता, उनकी हस्ती से कौन वाकिफ नहीं है, वो कैसी ज़ात है। मैं बस एक जुमला बोलूँगा और आप समझ जाएंगे कि वारिस पाक की ज़ात क्या है। सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले, सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले। इसमें फिर आले मोहम्मद को समझना क्या है।
محمد جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے حمد کیا ہوا، تعریف کی ہوئی۔ اگر محمد الرسول اللہ کی ذات تعریف کی ہوئی ذات ہے تو علی کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ اگر علی کی ذات تعریف کی ہوئی ذات ہے تو امام حسن کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ اگر امام حسن کی ذات تعریف کی ہوئی ذات ہے تو امام حسین کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ امام زین العابدین کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ امام باقر کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ امام جعفر صادق چھٹے امام کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ امام علی رضا کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ امام موسی کاظم کی ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے، اور امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں وارث پاک اگر عالم نواز ہیں تو یہ ذات بھی تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے، اس میں پھر آل محمد کو سمجھنا کیا؟ اگر امام موسیٰ کاظم کی ذات سے کاظمی سید ہے وارث پاک تو پھر دنیا کا کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وارث پاک محمد اپنے وقت کا محمد نہیں ہے؟ تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ رسول اور محمد میں فرق ہے۔ محمد نام ہے، محمد آج بھی لوگ کسی بچے کا نام رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن یہ ذات وہ ہے کہ سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے، اس میں پھر آل محمد کو سمجھنا کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ یا امام، آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ناطق ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نور ہیں، ہم سنتے ہیں کہ سب محمد کے گھرانے والے نور ہیں، اعلیٰ حضرت تو بہت بعد میں ہے۔ امام جعفر صادق کا حوالہ دے رہا ہوں میں چھٹے امام کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ارے 14ویں صدی کا امام، 14ویں صدی کا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب پوچھا اس شخص نے، سوالی نے سوال کیا، یا امام آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سراپا نور محمد ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اس میں کوئی تمہیں شک ہے؟ کہا شک ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں، اگر یقین ہو گیا ہوتا تو پھر پوچھتا ہی کیوں؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھنے والے نے، سائل نے سوال کیا، امام جعفر صادق نے فرمایا باوضو ہو کہ بے وضو ہو؟ کہا نہیں ابھی تو میں بے وضو ہوں۔ کہا جاؤ وضو کر لو، رحل اٹھا لو اور قرآن اٹھا لو، میرے سامنے رحل اور قرآن لے کر آ جاؤ، میرے سامنے رحل اور قرآن لے کر کے آ جاؤ۔ وہ سوالی گیا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن مقدس کو اٹھایا، اللہ کے کلام
کو اٹھایا اور رحل اٹھایا، امام جعفر صادق کے سامنے آیا اور قرآن کو رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کے پہلے ورق کو کھولو۔ جب اس شخص نے کھولا تو آپ نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ اس سورت کا کیا نام ہے؟ کہا کہ اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ کہا آگے کھولو۔ جب وہ آگے کھولا تو کہا کہ اس کا کیا نام ہے؟ کہا کہ یہاں سے شروع کرو۔ پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو امام جعفر صادق نے کہا رک جا، اس سورت کا کیا نام ہے؟ کہا اس سورت کا نام ہے الف لام میم۔ کہا پلٹ دو۔ 10 ورق اور پلٹوایا، اور جب دوسرا پارا آ گیا تو آپ نے کہا یہاں سے شروع کرو۔ اس نے شروع کیا سیقول السفہاء۔ آپ نے کہا رک جا، اس سورت اس پارے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس پارے کا نام ہے سیقول۔ کہا آگے چلو، 10 ورق اور الٹوا دیا۔ کہا ذرا یہاں سے پڑھو۔ اس نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کہا رک جا، بتا اس پارے کا کیا نام ہے؟ کہا تلک الرسل لن تنالوا البر اما یتساءلون لا یحب اللہ۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق قرآن کے اوراق کو الٹتے گئے، اس شخص سے سوالی سے پوچھتے گئے۔ اس نے سورہ فاتحہ سے لے کر اور اما یتساءلون تک کے سارے 30 پاروں کو بتاتا گیا، نام بھی بتاتا گیا، نام بھی بتاتا گیا، پڑھتا بھی گیا۔ اور جب امام جعفر صادق نے 30 پاروں کا نام پوچھ لیا، جب 30ویں پارے میں گئے تو ایک ایک سورتوں کا نام پوچھ لیا۔ اس سورت کا کیا نام ہے؟ کہا اس سورت کا نام فلاں ہے، اس سورت کا نام فلاں ہے، اس سورت کا نام فلاں ہے۔ سورہ والناس تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا سنو، اب قرآن کو بند کر دو۔ جب بند کر دیا کہا رحل پہ رکھ دو، رکھ دیا۔ امام جعفر صادق نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا قرآن ہے۔ کہا جب کھولو تو کہیں علی نکلے گا، جب کھولو قرآن محمد کو کھولو تو اسی محمد میں سے کبھی حسین نکلے گا، جب محمد کو کھولو تو اسی محمد میں سے کبھی حسن نکلے گا، جب محمد کو کھولو تو اسی محمد میں سے کبھی امام زین العابدین نکلے گا، اسی محمد کو کھولو تو اسی محمد میں سے کبھی اور نکلے گا، کبھی محمد نکلے گا، کبھی عقیل نکلے گا، کبھی غوث اعظم نکلے گا، کبھی ہندن ولی نکلے گا، کبھی وارث پاک نکلے گا۔ بند کرو تو محمد ہے، کھولو تو تمام انبیاء، تمام اولیاء۔ حضرت وارث پاک زندہ باد، رہبر ملت سرکار خواجہ ببلو حسن شاہ زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، نوری گھرانہ زندہ باد، رہبر ملت سرکار بابا حیرت شاہ زندہ باد، آستانہ وارثیہ زندہ باد، آستانہ قادریہ زندہ باد۔ اللہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت زیادہ مت لو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بس۔ کیونکہ وقت زیادہ لینے سے ہم لوگوں کو دقت ہوتی ہے، وقت بہت کافی لگ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات کھل گئی کہ بند کر دو تو اس کتاب کا نام قرآن ہے، اب کھول دو تو سورہ فاتحہ بھی اسی میں ہے۔
अलिफ लाम मीम भी उसी में है, सयकूल भी उसी में है, तिलकर रसूल भी उसी में है, अम्मा यतसाअलून भी उसी में है, वक्तीन भी इसी में है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक भी इसी में है, इन्ना आतैना कल कौसर इसी में है, हल अताका हदीसुल गाशिया इसी में है। नाम बदलता जाता है, नूर नहीं बदलता। इसीलिए कुरान की आयतों का, कुरान की सूरतों का नाम बदलता गया। नाम सिर्फ सूरतों का बदला, नाम सिर्फ आयतों का बदला। कल ही कलाम खुदा था, आज ही कलाम खुदा है और कल ही कलाम खुदा होगा। कुरान ये कल ही था, कुरान साकित ये कल ही था। मैं बोल देता हूँ, कुरान साकित ये कल ही था, कुरान साकित ये आज भी है, कुरान साकित ये कल भी रहेगा। और मेरा मोहम्मद कुरान नातिक कल भी था, कुरान नातिक आज भी है और कुरान नातिक कल भी रहेगा। ये मोहम्मद कुरान नातिक है। ये कुरान, ये किताब, ये कलाम कुरान साकित है। कुरान साकित को बोलने और बोलवाने के लिए कुरान नातिक की जरूरत होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, बात बस इसी जुमले पर समेट दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह में रूहों से पूछा, मीसाक लिया, अहद लिया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों के रूह से अहद लिया। अल्लाह ने कुरान में 3 मीसाक लिया है, याद रखिएगा। चौथा मीसाक नहीं कुरान में मिलेगा, सिर्फ 3 मीसाक मिलेगा। एक रूहों से, जिसमें तमाम रूहें मौजूद हैं, उनसे मीसाक लिया। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं, अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, सादिकीन भी हैं, आमिलीन भी हैं। इसमें तो तमाम शामिल हैं। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा आलू बला शहीदना, हाँ हाँ तू हमारा रब है। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा रब है। सबसे पहले मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह ने इकरार किया, कालू बला शहीदना, सबने बोला हाँ हाँ रब है। सबसे पहले मेरे नबी की रूह ने कहा, उसके बाद तमाम रूहों ने यके बाद दीगरे कहना शुरू किया, ए अल्लाह तू हमारा रब है। एक मिसाक ये हो गया, अल्लाह ने अब दूसरा मिसाक लिया तो हमें छाड़ दिया, सालिहीन को छाड़ दिया, सादिकीन को छाड़ दिया, काफिरीन को छाड़ दिया, मुनाफिकीन को छाड़ दिया, हमारे आप जैसे मोमिनों को भी छाड़ दिया, हम सबको छाड़ के अलग कर दिया। कहा अब 1,24,000 अंबिया से मिसाक ले रहा हूँ। या वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अब मैं नबीयीन से मिसाक ले रहा हूँ। अल्लाह ने नबियों से मिसाक लिया। या वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। मैं तुम्हें
किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा नबियों से, मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, मैं तुझे हिकमत भी दूंगा, अरे रिसालत भी दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे बाद एक मुसद्दक रसूल आएगा, तुम्हारे बाद एक ऐसा रसूल आएगा कि तुमको उस पर ईमान भी लाना पड़ेगा और उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। तो नबियों ने कहा, ए अल्लाह हमारे ज़माने में वो नबी आ जाएगा? कहा आएगा तो नहीं, मगर सुनो सुनो, वो मेरे इल्म में है, लेकिन तुम अभी इस पर ईमान लाओ। नबियों ने इमामुल अंबिया पर ईमान लाया। पता ये चला कि तमाम अंबिया मेरे नबी के उम्मती हैं, तमाम अंबिया मेरे नबी के उम्मती हैं। तो तमाम अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाया तो उन्हें रिसालत मिली, उन्हें किताब मिली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे भी बात बढ़ा दिया और कहा कि तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा। कालू अकररना, क्या तुम इकरार करते हो? तुम लोग इकरार करते हो? सबने कहा हाँ हाँ हम इकरार करते हैं। तो अल्लाह ने कहा काला फशहदू, अल्लाह ने कहा तुम इकरार करते हो? काला फशहदू, तो अल्लाह ने कहा तुम सब एक दूसरे पर गवाह बन जाओ, सब एक दूसरे पर गवाह बन जाओ, ताकि एक नबी दूसरे नबी का गवाह हो। कोई झूठलाए तो वो गवाही करे कि नहीं मेरे सामने इन्होंने इकरार किया था। तो 1,24,000 पैगंबरों ने जो इकरार किया, तो अल्लाह ने कहा काला फशहदू, तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। काला फशहदू, और सुनो व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और तमाम गवाहों पर मैं भी एक गवाह हूँ। वो अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तमाम गवाहों पर मैं गवाह हूँ। मैं ये सारी बातें जो आपको बताया हूँ सिर्फ इस बात के लिए बताया हूँ कि आखिरी जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ कुरान मुक़द्दस का, सिर्फ इसी को समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये कहा कि तुम इकरार करते हो, नबियों ने कहा हम इकरार करते हैं, अल्लाह ने कहा एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। क्या अल्लाह को अंबिया पर यकीन नहीं था क्या? सवाल पैदा होता है। अगर नबियों की गवाही, एक नबी की गवाही एक नबी के लिए काफ़ी नहीं है, तब न अल्लाह ने कहा कि मैं भी इस पर गवाह हूँ। और तुर्रा ये कि ये सब कुछ कहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, इसके बाद अगर एक लम्हे के लिए तुम मुकर गए, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर इसमें से कोई भी मेरे नबी के इस वादे को झुठलाकर मुकर गया और मुंह फेर कर चल पड़ा, तो सुनो नबी तो नबी क्या, हरे मुसलमान भी नहीं छोड़ूंगा। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, काफिर बना दूंगा, काफिर बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या उन नबियों के गवाही पर यकीन नहीं था? क्या उनके इकरार पे यकीन नहीं था? क्या उनके इकरार पे भरोसा नहीं था? लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह को उन नबियों के इकरार पर भी भरोसा था, उनकी गवाही पर भी भरोसा था, ये सब कुछ था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया को डांट रहा था, डांट रहा था अंबिया को और समझा रहा था हमारे जैसे लोगों को कि सुनो सुनो, ये तो नहीं मुकरेंगे, ये तो अपने वादे से नहीं फिरेंगे, लेकिन कभी भी किसी भी जमाने में कोई भी अगर ऐसे वादे से मुकर जाए तो उसका भी हश्र यही होगा जो हमने अंबिया को फैसला सुनाया है। तो लिहाजा कभी ऐसा न करना कि नबी की मजलिस में बैठकर नबी से बगावत करना। मेरे दोस्तों, नबी की बात
बारगाह में जब लोग बैठ कर अपने नबी से बगावत करने लगे, जब नबी की मजलिस में बैठ कर नबी से मुखालिफत करने लगे, नबी की मजलिस में बैठ कर नबी से मुनाफिकत करने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फिल दरकिल अस्फल मिनन नार, ऐ हबीब इन मुनाफिकों के लिए जहन्नम का निचला तबका है। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी बात को समेटते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ। और रात बहुत लंबी है, बात बहुत लंबी है, ये टॉपिक तो इतनी है कि मैं 3 घंटा इस पर तकरीर करूँ, लेकिन बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि कभी भी इकरार करके मुकर न जाना, और न हश्र वही होगा जो उन अंबिया को खुदा ने रिजल्ट सुनाया था। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अरे नबी तो नबी क्या, मुसलमान भी नहीं छोड़ूंगा, फासिक बना दूंगा, काफिर बना दूंगा। मेरे दोस्तों, हुआ भी ऐसा। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग उहद में शरीक हैं और उधर 50 सहाबा को एक दर्रे पर खड़े करते हैं कि हम कट जाएं, मर जाएं, हमारी टुकड़ियां, हमारी धज्जियां उड़ा दी जाएं, लेकिन तुम इस दर्रे को न छोड़ना। इधर नबी ने जंग फतह कर ली, मुशरिकीन मक्का उल्टे पांव पलट गए। जब मेरे नबी उनको दबोचे, सहाबा ने उन पर हमले किए, माल गनीमत को लूटने लगे, और तब तक उसी 50 में से मैं अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में उन्हें माफ फरमा दिया है। लेकिन वक्त नकले कुफ्र नबाशत, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ उस वाक़े को। 3 सहाबी उस दर्रे पर रुक गए और 47 सहाबी माले गनीमत को लूटने के चक्कर में पलट गए, दर्रे को छोड़ दिया। और उस वक्त खालिद इब्ने वलीद, जिन्होंने के इस्लाम से बामुशर्रफ, अभी इस्लाम से बामुशर्रफ नहीं हुए थे, पीछे से एक टुकड़ियों का दस्ता लेकर और एक अपने फौजियों का दस्ता लेकर पीछे से हमला किए और जंग का पासा पलट गया। और उसी में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जख्मी हुआ। मैं बेअदबी वाला लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लोग बोल जाते हैं। जख्मी हुआ, मेरे सरकार जख्मी हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी और कुछ लोग मैदान छोड़कर उसी हालत में बाहर चले गए। लेकिन मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शमशीर जुल्फ़िकार का वार दिखाया और फिर जंग का नक्शा पलट गया। अली की बहादुरी ने और शमशीर जुल्फ़िकार की चमक ने फिर काफिरों को उल्टे पांव फिराया और सारे भग गए और फिर फतह हो गई। और जब फतह हो गई, मेरे रसूल खेमे में आए तो जो लोग भागे हुए थे धीरे धीरे आते गए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फतह मुबारक हो। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? सुनिएगा तकरीर, समझिएगा माहौल। मुबारक हो, मुबारक हो। जब फतह हो गई तो मुबारक हो। तो मौला अली ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से पूछा, जो भगे थे मैदान छोड़कर, उनसे नहीं पूछा। किससे पूछा? अली से पूछा। ऐ अली, जब ये सब भग गए तो तुम क्यों नहीं भगे? पूछना तो उनसे चाहिए था कि तुम लोग क्यों भग गए। लेकिन मेरे नबी किससे पूछते हैं? देखिए, ये है नबी का हुस्न, ये है मेरे नबी का अखलाक, ये है मेरे नबी का सलीका, ये है मेरे नबी का तरीका कि जो भग गया अब उससे क्या पूछना है कि क्यों भगे। ये तो साबित हो रहा है कि जो भग गए वो डर गए। तो पूछा अली से कि ऐ अली, जब ये सब भग गए तो तुम क्यों नहीं भगे?
तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको पीठ दिखाकर काफिर हो जाता? पता चला कि इकरार के बाद इनकार के लिए जबान से इनकार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीठ दिखा देना ही काफिर होने की दलील है। इतना अली ने कहा, अभी मौला अली की जबान से ये बात निकल रही है कि या रसूल अल्लाह, क्या आपका कलमा पढ़कर, क्या आपकी नबुव्वत का इकरार करके आपको पीठ दिखाकर काफिर हो जाता? अभी अली की जबान से ये जुमला अदा होता है कि तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, जिब्रील अमीन आयतों का गुलदस्ता लेकर नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए, कुल अतिउल्लाह व रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। आयत नाजिल होती है। अली ने जो कहा, अल्लाह ने महरे आयत सब करके ये बता दिया कि अली जो कह रहा है यही हक है। कुल अतीउल्लाह व रसूल, अरे मेरे महबूब, इन लोगों से फरमा दीजिए कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर एक लम्हे के लिए, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अगर एक लम्हे के लिए, लम्हा कहते हैं सेकंड को, अगर एक सेकंड के लिए भी अल्लाह उसके रसूल को पुष्ट दिखाया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, फिर अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। बात क्लियर हो जाती है। इकरार करके इनकार करना, इनकार तो जबान से नहीं, सिर्फ पीठ दिखाना ही इनकार है। और जो ही इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। तुम लाखों मोमिन, लाख बार मोमिन बनने की कोशिश करो, नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जंगी उहद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सहाबियों को फिर कुरान में आयत नाजिल हुई और उन्हें माफ़ फरमाया और कहा कि हम इन्हें माफ़ फरमाते हैं जिन्होंने मैदान छोड़कर वहाँ से गए हुए थे और जो लोग दर्रा को छोड़ दिए थे, नबी की इताअत नहीं किए थे, जो नबी की इताअत से मुकर गए थे। अल्लाह ने फिर कुरान की आयत में आयत नाजिल फरमाई और कहा कि हम इन्हें माफ़ फरमाते हैं। मेरे नबी ने कहा जब अल्लाह माफ़ फरमा दिया तो हम भी माफ़ फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस इन्हीं चंद जुमलों के बाद मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं बारहा आपको कहता रहता हूँ अपनी तकरीरों में, अपनी वाज में कि अपने मुर्शिद पे कर पहले हस्ती फना, अपने मुर्शिद पे कर पहले हस्ती फना, तो इश्क में ये करामात हो जाएगी, औलिया का करम तुम पे हो जाएगा, तब नबी से मुलाकात हो जाएगी, औलिया का करम तुम पे हो जाएगा, तब नबी से मुलाकात हो जाएगी, औलिया का करम तुम पे हो जाएगा, तब नबी से बासहारा हो लाजिम रहे इश्क में, जैसे कतरे को गौश दरिया मिले। रे कमली वाले अगर तुमसे खुश हो गए तब खुदा से मुलाकात हो जाएगी, कमली वाले अगर तुम पे खुश हो गए तब खुदा से मुलाकात हो जाएगी, अपने मुर्शिद पे कर। हज़रात गिरामी,
میں اس آیت کریمہ کے تحت آپ تک اپنی باتیں پہنچائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وعدہ سے مکرنا نہیں اور غلط قدم نہ اٹھاؤ۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ فیشن، پیری مریدی ایک فیشن بن گیا ہے۔ بس دوڑے دوڑے گئے کسی پیر کے ہاں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیر تھوک کے بھاؤ میں مل رہے ہیں۔ آج کل پیر بھی تھوک کے بھاؤ میں مل رہے ہیں، کیونکہ پیر صاحب لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے، 5,000 لا کے دے دینا، 10,000 لے کے آ جاؤ، کہ یہ آرڈر چل رہا ہے پیر لوگوں کا۔ اب کچھ تو پیر ایسے ہیں کہ کون مرید آیا ہے، فلاں آیا ہے، پوچھ لو کتنا روپیہ لے کے، اگر روپیہ لے کے نہیں آیا ہے تو جاؤ بھاگو، ملاقات نہیں۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، نہ پیری ہے نہ مریدی ہے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرید صادق وہ ہے، مرید صادق سچا مرید وہ ہے کہ جب اقرار کر لے کہ میں نے تن من دھن آپ کے دامن میں بیچ دیا، تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کچھ ہے۔ اب پیر صاحب اگر مرید ایسا سمجھ لے تو مرید بھی چلاک ہو گیا، کہ اگر ایسا سمجھ لوں گا تو آج کا پیر جو ہے یہ تھوک کے بھاؤ والا یہ کہے گا تو سب بیچ نہ دیا ہے تو سب لا کے میرے یہاں پہنچا۔ اسی لیے مرید جو ہے چوکنا ہو گیا کہ پیر غلط ہو گیا۔ اگر پیر کامل ہوتا تو مرید صادق ہوتا، اگر پیر کامل ہو تو مرید صادق ہو۔ اب پیر جب خود ہی کامل نہیں ہے، ناکامل ہے، تو مرید صادق کیوں بننے جائے؟ اس لیے کہ اگر مرید صادق ہو گیا تو لاؤ جنگ تبوک میں جانا ہے، ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے کر پہنچ گئے، عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے کر پہنچ گئے، تو پیر مرید کامل تھے۔ اب پیر کامل سرکار مدینہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ لاؤ یہ روپیہ میرے پاس جمع کر دو میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ تو آج کل بڑا پھونک پھونک کر کے پیر اور مرید کو پکڑنا ہے۔ آج تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ کوئی بھی ہو اور کسی گدی پہ اچھل کے بیٹھ کے پیر صاحب بن جاؤ۔ ارے بابا یہ کہاں کا اصول آ گیا؟ ابھی تو ہم نے سنا تھا کہ چشتیہ ہو تو چشتیہ فقیر بیٹھے، قادریہ ہو تو قادریہ فقیر بیٹھے، صابریہ ہو تو صابریہ فقیر بیٹھے۔ شاخیں سب الگ الگ ہیں، جڑ اس کی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن جو شاخ جس شاخ سے نکلی ہے اسی شاخ پر بیٹھے، کسی دوسری گدی پہ نہ بیٹھے۔ آج تو ایسے بھی پیر صاحب لوگ مل رہے ہیں کہ بھلے ہی گدی قادری ہو، ہم بھلے ہی صابری ہو، جلدی بیٹھ جاؤ، گدی تو خالی ہے۔ لیکن تم سے بہتر تھے کعبے کے بت جو جھک گئے بندگی کے لیے، جب شری رام چندر جی ایودھیا کو چھوڑ کر 14 سال کی بنواس کے لیے چلے ہیں اور پورا ایودھیا میں سوگ کا ماتم ہو گیا ہے، سوگ ہو گیا ہے، ماتم ہو گئی ہے۔ ارے ایودھیا ایودھیا ہے، یمنا سریو ندی کی لہریں بھی سسکیاں لے رہی تھیں، اس لیے کہ شری رام چندر جی ایودھیا چھوڑ کے 14 سال کی بنواس کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، جیوں ہی بھرت ننیحال سے
अयोध्या पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी निकल चुके हैं। अयोध्या शोक में है। बाप राजा दशरथ गिर चुके हैं। कलेजा से आह आह की आवाज आ रही है। जो ही पहुंचे पूछा, मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी। लोगों ने कहा वो अयोध्या छोड़ चुके। भरत जैसा भाई सुरवे जमीन पर आज तक मिसाल दिया जाता है कि भाई हो तो फिर भरत जैसा। माँ के पास गए, कहा माँ क्या बात है? उसने कहा बेटा, माँ का नाम कैकेयी था। कौशल्या, सुमित्रा एक राम की माँ थी और सुमित्रा लक्ष्मण की माँ थी और कैकेयी भरत और शत्रुघ्न की माँ थी। इतना तवारीख मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। वो ज्यों ही माँ के पास गए, माँ से पूछा, माँ ने अपनी बात बताई कि मेरे दो वरदान थे, मैंने उनसे मांगा है अपने पति से। एक में तुम्हें राज तिलक, राजगद्दी, और दूसरे में श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास। जब भरत ने ये जुमला सुना, कहा जाओ तुम मेरी माँ हो, वरना मैं अभी बहुत कुछ कर सकता था। माँ समझकर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। निकले और पीछे पीछे गए। श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ चुके थे और जिस जंगल में आपको वनवास लेनी थी आप वहां पहुंच चुके थे। पहले ही थे, एक जगह थी, आप वहां क्याम किए हुए थे, जिसको हम खेमा कहते हैं। कुटीर लगाकर खेमा जन होकर वहां रहे। दशरथ वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके भाई के कदमों पर गिर जाते हैं। भाई के कदमों पर गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपके होते हुए मैं गद्दी पे कैसे बैठ सकता? भाई मेरा जिंदा हो, बड़ा भाई हो, मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये श्री रामचंद्र जी का भाई भरत बोल रहा है और मनाने की कोशिशें करने लगा, और लाखों कोशिशें भरत की बेकार चली गई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे पिता का ये वरदान है। और माँ ने मांग लिया है, पिता ने दे दिया है। 14 साल अगर मैं 14 साल वनवास नहीं करता तो मेरे बाप का एक वरदान रह जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, जब प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज तो लोग कई बार मुकरते हैं, इस बात कहकर कई बार मुकर जाते हैं। इसलिए मैंने वो जुमला कहा था कि तुमसे बेहतर थे काबे के बुत जो झुक गए बंदगी के लिए। श्री रामचंद्र जी के यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, भाई चलिए, अयोध्या आप बिना सुना है, जिंदगी हम सब की अधूरी है। अयोध्या वासी आप ही को चाहते हैं, आप निकल आए हैं। अयोध्या का चश्मोचिराग, अयोध्या की रौनक, अयोध्या की रंगत और खुशी सब मिट्टी में मिल चुकी है। भाई आप लौट चले। लाख जतन किए, कोशिश किए, श्री रामचंद्र जी वापस न हुए कि मेरे बाप का एक वरदान रह जाएगा, मैं 14 साल के बाद आऊँगा। तो भरत ने कहा कि मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता, आपकी जिंदगी में मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अच्छा तो मेरा ये खड़ावन ले लो, ये मेरा खड़ाऊं ले लो और ले जाकर गद्दी पे रख देना। जितनी प्रजा आएगी मेरे खड़ाऊं के सामने सर झुकाएगी। एडवाइजर का काम तुम कर देना, जो उनको ज़रूरत होगी, जो उनकी ज़रूरियात होंगी तुम उसे पूरा कर देना, बता देना कैसे क्या होना चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना? कहा हुजूर अब इतना मैं कर दूंगा। अपने भाई का खड़ावन लिए सर पे रखा। भरत ने
श्री रामचंद्र जी के खड़ावन को सर पे रखा और राज गद्दी पे ला के रख दिया, अपने नीचे बैठे। राज गद्दी पे श्री रामचंद्र जी का खड़ावन था, लेकिन वाह रे अयोध्या की जनता श्री रामचंद्र जी के खड़ावन को रखकर तुमने हुकूमत में श्री रामचंद्र जी को हाजिर मानकर खड़ावन को रख दिया गया, तो तुम इस खड़ावन को अपना बादशाह, अपना शहंशाह समझकर और अपनी जिंदगी गुजारते रहे और भरत से मशवरा लेते रहे, मगर भाई अपना खड़ावन उतार कर गद्दी पर रख दे तो हुकूमत चलती है, और अगर बाप किसी को उठाकर गद्दी पे बैठा दे तो एतराजात होते हैं। तुमसे बेहतर थे काबे के बुत जो झुक गए बंदगी के लिए। अगर फकीर किसी फकीर को गद्दी पे बैठा दे तो एतराज कैसा? अरे भाई खड़ावन दे दे तो हुकूमत चलती है, और फकीर गद्दी दे दे तो विलायत चलती है। हम यहाँ रहें कि वहाँ रहें, कहीं रहें, विलायत का किरण फूटती रहेगी और विलायत चलती रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, नारे तकबीर। अगर कोई पीर, अगर कोई फकीर किसी फकीर को अपनी गद्दी पे बैठाता है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों वहाँ वही जचेगा जिसे बैठाया गया। इसीलिए तो मेरे सरकार ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब सहाबा तो 1,24,000 हैं, अगर कोई ये कहे कि दरवाजा मैं हूँ तो मेरे दोस्तों अली जचेंगे, वो नहीं जचेगा। अगर मेरे नबी ने कहा अना वो अलीयम मिन नूरे वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो जलवे हैं, लेकिन कोई दूसरा कहे कि जो नबी है वो हमारे जैसा, जो मैं हूँ नबी जैसा, तो नहीं जचेगा। मेरे नबी कह दे अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर अगर कोई कहे कि मैं भी हुसैन जैसा हूँ तो नहीं जचेगा। पता ये चला क्यों नहीं जचेगा? मस्जिद नबवी है, मेरे सरकार सबसे ऊपर वाले मिंबर पे बैठकर खुतबा देते थे। जब मेरे सरकार पर्दे हुस्न में चले गए तो दूसरी सीढ़ी पर दूसरे मिंबर पे, मिंबर सानी पे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठकर खुतबा देते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत खत्म हुआ, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का दौर आया, तो आपने नबी के बैठने वाले मिंबर पे नहीं बैठे, हजरत अबू बकर के बैठने वाले मिंबर पे नहीं बैठे, उससे नीचे वाले तीसरे मेंबर पे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठकर खुतबा दिया करते थे। और जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत खत्म हुआ तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो चौथे मेंबर पे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठकर खुतबा दे चुके। और जब इनका दौरे खिलाफत खत्म हुआ तो मौला अली का दौरे खिलाफत आया। अब मेंबर बचा ही नहीं, 4 मेंबर, 5वां जमीन। जब मौला अली गए तो लोग सोचने लगे कि पहला मेंबर रसूल का, दूसरा मेंबर अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा नंबर उमर फारूक का, चौथा मेंबर उस्मान गनी का। अरे अब अली कहाँ बैठेंगे? इधर मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं,
पहले मेंबर पे कदम रखा, दूसरे मेंबर पे कदम रखा, तीसरे मेंबर पे कदम रखा, और जहां मेरे नबी बैठते थे उसी जगह बैठ गए। और जब बैठ गए तो चेमी गोइयां शुरू हो गई, जैसे आज शुरू हैं। चेमी गोइयां शुरू हो गई जैसे आज शुरू हैं। मैं जुमला उसे दे रहा हूँ, ये चेमी गोइयां शुरू हो गई। ये मेंबर तो रसूल का है, इस मेंबर पे अली कैसे बैठ गए? अबू बकर सिद्दीक अव्वल खलीफा नहीं बैठे, दूसरे खलीफा नहीं बैठे, तीसरे खलीफा नहीं बैठे, इस मेंबर पे अली कैसे बैठ गए? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नाम एक का मोहम्मद है, नाम एक का अली है, मनसब एक है। जब मनसब एक होता है तो बैठता है तो मौला अली समझ गए। जो काना फूसी मस्जिद में चलने लगी, अली ने कहा काना फूसी क्या कर रहे हो? अरे सुनो सुनो, यहाँ तो मेरे नबी बैठते थे, अली का ये कदम तो नबी के कंधे पे चढ़ा है। अरे मेरे नबी तो हरम के अंदर नबी ने तो मुझे अपने कंधे पे उठाया है। अरे सिर्फ मुझे नहीं उठाया है, मेरे नुत्फे को, हुसैन को भी उठाया है, हसन को भी उठाया है। अरे तू क्या बात करेगा? जिस गद्दी पर मेरे रसूल बैठते थे, जब मेरी बीबी फातिमा ज़हरा आती थी तो मुस्तफा जाने रहमत उस गद्दी को छोड़ देते थे और मेरे नबी फातिमा ज़हरा सलातुल्लाह ताला अलैहा के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। कोई आए, जिब्रील आए, वक्त का फरिश्ता आए, वक्त का इस्राइल आए, वक्त का मिकाईल आए, वक्त का इसराफील आए, कोई सहाबी आए, कोई शहंशाह आए, मेरे सरकार अपनी गद्दी को नहीं छोड़ते। कुर्बान जाओ, फातिमा ज़हरा जब आप आती थी तो बाबा गद्दी क्यों छोड़ दिया करते थे? फातिमा तेरा क्या मकाम है? कहा कि मकाम ही तो समझाना था कि जब फातिमा आती थी तो मोहम्मद गद्दी छोड़ देते थे। तो फातिमा तो मोहम्मद की बेटी थी, अली फातिमा का शौहर था, इसलिए जहां मोहम्मद बैठते थे वहां अली बैठ सकता है। पता ये चला कि मनसब अगर एक है तो उस गद्दी पर बैठा जाता है और जो जिसका मनसब होता है उसी को अदा किया जाता है। अब इसमें तुम्हें क्या फिक्र लगी हुई है? बख्शा किसको गया, सौंपा किसको गया? अरे अगर आप पे सलीका होती तो पहले ही उस मेंबर को पा लेते। लेकिन अली का मुकाम ये है कि अली मांगता नहीं फिरता, अली हाथ नहीं फैलाता। वारिसे पाक ने कहा है कि कभी हाथ न फैलाना किसी के सामने, हाथ न फैलाना, अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना, ऐसे न करना। ये मेरे वारिस ने कहा है। हाथ फैलाकर मांगा तो भिखारी है, और अगर दिल खोल के मांगा, दिल से मांगा तो शहंशाह है। दिल में मोहब्बत पैदा करो, दिल में प्यार पैदा करो, दिल में उनसियत पैदा करो। रही मन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने की, ऊपर से तो दिल मिले अंदर फाके तीर। रहीमदास ने कहा रहीमन ऐसा प्रेम न करना खीरा की तरह। रहीमन प्रीति न कीजियो जस खीरा ने की, कि ऊपर से तो दिल मिले, ऊपर से खीरा बड़ा चिकना चोपड़ा होता है, अंदर फाटे तीन। तो खीरा की तरह प्रेम न करना। प्रेम कैसा करना? रहीमन प्रीति सराहिए मिल होत रंग दूर, जौहर दी जर्दी तजे सफेदी चूर। रहीमन
ऐसी प्रेम की सराहना करो, ऐसी प्रीत की सराहना करो, ऐसी मोहब्बत की सराहना करो जैसे हल्दी करती है कि जब हल्दी चूना से मिलती है तो वो अपना रंग छोड़ देती है, चूना अपना रंग छोड़ देता है, हल्दी अपना रंग छोड़ देती है, दोनों मिलके एक रंग हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ दुरंगी छोड़ के एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या बिल्कुल संग हो जा। तो मेरे दोस्तों दुरंगी नहीं चलेगी, जो जिस सिलसिले की करती है वही सिलसिले के लोग उसे चलाएंगे, चाहे वो सिलसिला हमारा सारा सिलसिला वो औलिया का एक है, हमारा सारा सिलसिला एक ही जड़ की शाखें हैं, लेकिन उसूल ये कहता है कि अगर तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाया गया है तो बायोलॉजी का टीचर वहाँ जाए, बायोलॉजी पढ़ाने के बच्चों के लिए बायोलॉजी का टीचर चाहिए, साइंस के बच्चों के लिए साइंस का टीचर चाहिए, तो चिश्तिया बच्चों के लिए चिश्तिया टीचर चाहिए, कादिरिया बच्चों के लिए कादिरिया टीचर चाहिए, और वारसिया बच्चों के लिए हमारे जैसा वारसिया टीचर। तब चलेगा मकतब, तब चलेगा स्कूल, और तब होगी कामयाबी। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, ऐ अंबिया इस नबी पर ईमान लाओ, इनकी मदद भी करो, तब तुम्हें किताब भी दूंगा और हिकमत भी दूंगा। ईमान नहीं लाओगे, मदद नहीं करोगे तो फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। तो सुनो मुसलमान तो मुसलमान, नबी तो नबी, मुसलमान भी नहीं छोड़ूंगा, काफिर बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और यासीन कहा तो हमने कहा 10 मिनट 5 मिनट और बढ़ा दें, शायद लंगर तैयार हो गया है। अब लंगर तैयार है, मैं तकरीर इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया कि लंगर बनने में कुछ देर थी, इसलिए अब लंगर तैयार है। अब मैं अपनी बातों को इन्हीं चंद जुमलों के साथ समेटता हूँ, ये कहते हुए कि मेरे दोस्तों, ये आस्ताना, ये खानकाह बाबा हैरत शाह ने जो सजाया है, बनाया है, और इसको बनाकर सजाकर अब पूरे आवाम के सामने उन्होंने मुझे सौंपा, और उन्होंने कहा कि इसको बड़े उरूज पर ले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, हम अपने बच्चों को समेट कर, मुरीदों को सजाकर, संवार कर, और इन्हीं से चंद पैसे लेकर इसको सजाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। इसकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन बाबा ये मुरीद ही हमारे प्रॉपर्टी हैं, इनसे जो कुछ भी मिल जाएगा हम इसी में से जो ये हमारे मुरीद अपने बाल बच्चों के रोटियों में से काट कर 10 रुपए लाकर हमें पेश करेंगे, हम उसी में लंगर भी चलाकर और लोगों को मोहब्बत भी बांट कर और उसके बाद भी इसको सजाएंगे। मेरे दोस्तों, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप जानते हैं मुखलिस लोग आते हैं और 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं, और उसी को समेट करके साल में 1-2 लंगर है, हम उसको चला देते हैं, लोगों तक वो आरसी पैगाम पहुंचा देते हैं। मेरी सिर्फ ख्वाहिश इतनी है कि 2 शख्सियात, एक कलीम शाह वारसी और हैरत शाह वारसी इसमें दफन है, तीसरा मदफन ज़ैबुन वारसी का इसमें बनना है, और तीसरा मदफन जो ही हुआ उनकी कब्र बनी तो हम उनके मज़ार शरीफ का भी काम करेंगे और उसको बनाएंगे, सजाएंगे, ताकि आस्ताना हमारा खूबसूरत बन जाए और खूबसूरती के साथ चलता रहा। हमने वो लफ्ज़, वो जुमला फिर दोहराया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर सलातो व सलाम का हदिया पेश फरमाएं।